آداب، یہ ہے اعتماد کی خبریں۔ سب سے پہلے پیش ہے سرخیاں۔ سنبھل جامع مسجد تنازع، سپریم کورٹ کی نچلی عدالت کو مزید سماعت نہ کرنے کی ہدایت۔ لگا چلا حصول اراضی کا کام روک دیا گیا، حکومت اپنے سابق فیصلے سے دستبردار۔ کانگریس کے ایک سالہ دور حکومت میں کوئی بھی طبقہ خوش نہیں، کے ٹی آر کا ریمارک۔ اور شیر کے حملے میں لڑکی ہلاک، ضلع آصف آباد میں واقعے سے مقامی افراد میں خوف۔ سرخیوں کے بعد اب پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ ایک اسرائیلی لڑاکا طیارے نے جنوبی لبنان میں فضائی حملہ کیا۔ اسرائیل ڈیفنس فورسز نے ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ اس حملے کا مقصد خطرے کو ناکام بنانا تھا۔ خبروں کے مطابق چہارشنبے کی صبح لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کے نافذ ہونے کے بعد یہ مبینہ طور پر اپنی نوعیت کا پہلا حملہ تھا۔ متحدہ عرب امارات نے دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ کے لیے لائٹنگ اپ گریڈ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ برج خلیفہ کو ایک متحرک RGBW لائٹنگ سسٹم سے لیس کیا گیا ہے، جس میں عمارت کی تعمیراتی فنکاری کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی کو شامل کیا گیا ہے۔ لائٹنگ کا یہ نظام 1 دسمبر 2024 کو ملک میں عید الاتحاد کی تقریبات کے دوران شروع ہوگا اور 4 جنوری 2025 کو اپنی 15ویں سالگرہ منانے کے لیے تیار ہے۔ نئے نظام کو نصب کرنے کے عمل کو احتیاط سے مربوط کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے سنبھل کی جامع مسجد تنازع میں اہم ہدایت جاری کی ہیں۔ عدالت نے زیریں عدالتوں کو حکم دیا کہ وہ اس معاملے میں کوئی بھی کارروائی نہ کریں جب تک ہائی کورٹ سے کوئی واضح ہدایت نہ ملے۔ چیف جسٹس آف انڈیا سنجیو کھنہ کی سربراہی میں بنچ نے کہا کہ مسجد کمیٹی کو اپنے قانونی اختیارات کا استعمال کرنے کا موقع دیا جائے، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو یا ڈسٹرکٹ کورٹ۔ سپریم کورٹ نے UP کی سنبھل شاہی مسجد معاملے میں مداخلت کرتے ہوئے زیریں عدالت سے کہا کہ اس معاملے میں مزید سماعت نہ کرے۔ کیس کی سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا جب تک الہ آباد ہائی کورٹ کو حکم جاری نہیں کرتا، نچلی عدالت کو کیس کی سماعت نہیں کرنی چاہیے۔ اڈانی اور سنبھل کے پرتشدد واقعات کے معاملے میں لوک سبھا میں ہنگامہ آرائی کی وجہ سے ایوان کی کارروائی مسلسل چوتھے دن بھی متاثر رہی۔ ہنگامہ آرائی کی وجہ سے پہلے کارروائی ملتوی ہونے کے بعد جب دوپہر 12 بجے ایوان کی کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تو اپوزیشن نے ایک بار پھر اڈانی انڈسٹری گروپ کی بدعنوانیوں کے الزامات اور سنبھل واقعے پر بحث کروانے کا مطالبہ کرتے ہوئے شور مچایا۔ اس دوران شور شرابے کے درمیان صدر نشین دلیپ سانگھیا نے آج ایوان میں پیش کیے جانے والے مختلف کاغذات اور رپورٹس کو پیش کرنے کا عمل مکمل کیا۔ چرچا کرنے کا پریاپت اوسر دوں گا۔ صدن کی کارروائی آج 12 بجے تک کے لیے استھگت کی جاتی ہے۔ جہاں دہلی فسادات میں ملزم بنائے گئے شرجیل امام کو ابھی تک عدالت سے کوئی راحت نہیں مل سکی، وہیں ان کے گھر میں خوشی کا ماحول ہے۔ یہ خوشی ان کی چھوٹی بہن فرح نشاط نے دی ہے، جنہوں نے 32واں بہار جوڈیشل سروسز کا امتحان پاس کر کے جج بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ شرجیل امام کے چھوٹے بھائی مزمل امام نے سوشل میڈیا پر اس خبر کا اعلان کیا۔ مزمل امام نے سوشل میڈیا پر لکھا، یہ زندگی کا فلسفہ ہے۔ ایک طرف جہاں ان کا بھائی جبر کے خلاف انصاف کی جنگ لڑ رہا ہے اور جیل میں ہے، وہیں دوسری طرف بہن ظلم کے خلاف انصاف دینے والی جج کی کرسی پر بیٹھے گی۔ کانگریس کے سینئر لیڈر بھوپندر سنگھ ہوڈا نے جمعہ کو الزام لگایا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے ہریانہ کو منشیات کا مرکز بنا دیا ہے اور گزشتہ 5 سال میں 15 لاکھ افراد منشیات سے علاج کے لیے ہاسپٹلوں سے رجوع ہوئے۔ ایک بیان میں بھوپندر سنگھ ہوڈا نے کہا، جب سے ریاست میں BJP کی حکومت آئی ہے، منشیات فروشوں کی بھرمار ہو گئی ہے اور انہوں نے بغیر کسی خوف کے ریاست بھر میں اپنا نیٹ ورک پھیلا دیا ہے۔ آج منشیات کی لت ریاست کے ہر گاؤں، گلی اور محلے تک پہنچ چکی ہے۔ مہاراشٹر کے گونڈیا ضلع میں خوفناک حادثے میں 10 افراد کی موت ہو گئی اور درجنوں زخمی ہو گئے جب بھنڈارا سے گونڈیا جانے والی ایک بس تیز رفتار کے باعث اپنا کنٹرول کھو کر الٹ گئی۔ یہ حادثہ گونڈیا ارجونی روڈ پر بندروانا ٹولہ گاؤں کے قریب پیش آیا۔ یہ بس بھنڈارا ڈپو سے گونڈیا جا رہی تھی اور جب یہ گونڈیا ارجونی روڈ پر بندروانا ٹولہ کے قریب پہنچی تو ڈرائیور نے گاڑی پر کنٹرول کھو دیا اور بس الٹ گئی۔ حادثے میں 8 افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے جبکہ دیگر 2 کی ہاسپٹل منتقلی کے دوران موت ہو گئی۔
चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत किसानों को फी क्विंटल धान पर 500 रुपए बोनस फराहम कर रही है, जिससे धान की काश्त करने वाले किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। तेलंगाना में फी एकड़ 20 से 24 क्विंटल धान की पैदावार होती है और इस इजाफी बोनस की वजह से हर एकड़ पर किसानों को तकरीबन 10,000 से 12,000 रुपए इजाफी आमदनी हासिल हो रही है। रेवंत रेड्डी ने सोशल मीडिया पर एक ट्विटर पैगाम में ये बात कही। कबायली और दलित गरीब किसानों की जद्दोजहद के आगे रेवंत रेड्डी हुकूमत को झुकना पड़ा। हुकूमत ने ऐलान किया कि लग्गचर्ला में जमीन की हुसूलियाबी का मंसूबा मनसूख किया जा रहा है। रियासती हुकूमत ने जुमा के रोज एक एलान जारी करते हुए बताया कि फार्मा विलेज के कयाम के लिए दुड्डियाल मंडल के लग्गचर्ला गांव में जमीन की हुसूलियाबी रोक दी गई है। ये फैसला किसानों की जानिब से किए गए शदीद एहतजाज के बाद किया गया। रियासत भर में समाजी, इक्तिसादी, तालीमी, रोजगार, सियासी और जात पर मबनी मर्दमशुमारी का डेटा तेजी से डिजिटलाइज किया जा रहा है। जुमेरात को 39,51,469 घरों की मालूमात डिजिटलाइज की जा चुकी हैं, जबकि सिर्फ 6,59,839 घरों की मालूमात इकट्ठा करना बाकी है। मुलुगु जिला 82.5% डेटा कंप्यूटराइज्ड करके पहले नंबर पर है, जबकि यादाद्री भुवनगिर जिला 74.2% डेटा के साथ दूसरे मुकाम पर है। सिद्दीपेट में 64.5% और महबूबनगर में 60.6% कंप्यूटराइजेशन का अमल मुकम्मल हो चुका है। बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने कहा है कि कांग्रेस के एक साला दौरे हुकूमत में कोई भी तबका खुश नहीं है, हत्ता कि गुरुकुल हॉस्टल्स के तुलबा भी अपनी जिंदगी खत्म करने पर मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हॉस्टल्स में खाने के नाकिस मयार की वजह से तुलबा को हॉस्पिटल से रुजू होना पड़ रहा है। तुलबा खाने के लिए तरस रहे हैं और एक कांग्रेस की एक साला हुकूमत की तस्वीर पेश करता है। करीमनगर जिले के अलगनूर चौराहे पर जुमा के रोज मुनक्किदा दीक्षा दिवस प्रोग्राम में साबिक वजीर केटी रामाराव ने शिरकत की और तेलंगाना की मौजूदा सूरत हाल पर कांग्रेस हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। తెలంగాణ ప్రజల్లో ఒక నిప్పు పుట్టి అది ఆర్పలేని నిప్పుగా మారి ఆఖరికి మమ్మల్ని కాల్ చేస్తదేమో అని కాంగ్రెస్ పార్టీ భయపడి ఇయ్యకపోతే ఈపు చింతపండు అవుతుందని చెప్పి అర్థమైనాక ఆనాడు విధి లేక దిగి వచ్చి ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ। ఇది వాస్తవం। ఆనాడు ఉద్యమంలో అడ్రస్ లేనోడు మాట్లాడుతున్నాడు ఇయాల, ఆనాడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో మన మీదకి తుపాకీ తీసుకొచ్చినోడు ఇయాల మాట్లాడుతున్నాడు। సోనియమ్మ తెలంగాణ ఇయ్యకపోతే మీరు నాంపల్లి దర్గా కాడ అడుక్క తింటుండే అని మాట్లాడుతున్నాడు తెలంగాణ ప్రజలను ఉద్దేశించి ఇయాల గద్దెనెక్కినోడు। ఆయన ఇయాల అదృష్టవంతుడు, అధికారం ఆయనకు ఉండొచ్చు, అధికారం నీకుండొచ్చు, కానీ తెలంగాణ ప్రజల అభిమానం ఖచ్చితంగా కేసీఆర్ కు ఈ గులాబీ జెండాకే ఉన్నది। ఇది అక్షర సత్యం। నువ్వు ఇయాల అరిచేతుల వైకుంఠం చూపెట్టి 6 గ్యారెంటీలు అని చెప్పి 420 హామీలు ఇచ్చి దొంగ మాటలు నంగనాచి కబుర్లు చెప్పి ఇయాల నువ్వు గెలవచ్చు, కానీ ఒక్కటి మాత్రం వాస్తవం బిడ్డ, ఏ రోజుకైనా ఏనాటికైనా తెలంగాణ చరిత్ర రాసిన రోజు కేసీఆర్ గారు హిమాలయాల పర్వతమంతా ఎత్తున ఉంటే కనీసం నువ్వు ఆయన కాలి గోరికి కూడా సరిపోని పాత్రలో ఉంటావు అనేది అక్షర సత్యం। ఇలా ఏ ఊరికన్నా పోదాం, ఏ ఊరికన్నా పోదాం, ఏ తాండకన్నా పోదాం, ఏ బస్తీ కన్నా పోదాం, ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారో నీ సంవత్సరం పాలన గురించి ఒకసారి తెలుసుకో దమ్ముంటే నేను అడుగుతా ఉన్నా। ఎక్కడ పోయినా ఒక ఆటో అన్నను కదిపితే ఆయన తిడుతున్నాడు, ఒక రైతునికి తట్టుకొని మాట్లాడితే। रियासत की बरसर इख्तिदार जमात कांग्रेस ने निर्मल जिले के दिलावरपुर में वाक़े इथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ मुकामी अवाम और किसानों की जानिब से किए जाने वाले पुरतशद्दुद एहतजाज और अपोजिशन की तनकीदों और इल्जामात का जवाब देते हुए इथेनॉल फैक्ट्री के क़याम से मुताल्लिक़ तफसीलात जारी की हैं। हुकूमत ने कहा कि पेशरो बीआरएस हुकूमत के दौर में इस फैक्ट्री को इजाजत दी गई थी और इस सिलसिले में कांग्रेस हुकूमत ने कई दस्तावेज को मंजर आम पर लाया है। रियासती हुकूमत के मुताबिक फैक्ट्री को इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए दी गई इजाजतनामे माहौलियात के उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हैं। मरकजी हुकूमत ने सिर्फ फ्यूल इथेनॉल के लिए इजाजत दी थी, लेकिन इस वक्त की बीआरएस हुकूमत ने दीगर मसनूआत जैसे एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, इंडस्ट्रियल स्पिरिट और एब्सोल्यूट अल्कोहल की तैयारी के लिए भी इजाजत दे दी थी। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी इदारों, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और यूनिवर्सिटीज के मुलाजिमीन के लिए एक अहम फैसला किया है।
रियासती हुकूमत के मुलाजमीन और पेंशनर्स के मसावी इन इदारों के मुलाजमीन को भी उबूरी राहत IR देने का ऐलान किया गया है। हुकूमत ने फैसला किया है कि मुलाजमीन को भी बुनियादी तनख्वाहों पर 5% उबूरी राहत फराहम की जाएगी। इस सिलसिले में महकमा फाइनेंस ने अहकाम जारी कर दिए हैं। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में इजराइल के सफीर रोवन अजहर से वजीर इंडस्ट्री डी श्रीधर बाबू ने मुलाकात की। वजीर श्रीधर बाबू ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट के लिए इजराइल ने तकनीकी मदद फराहम करने का पेशकश किया है। उन्होंने कहा कि इजराइल की जानिब से तेलंगाना के साथ बाहमी ताउन के लिए दिलचस्पी जाहिर होने पर खुशी है। श्रीधर बाबू ने बताया कि इजराइल दुनिया में मसनवी जहानत, साइबर सिक्योरिटी जैसे शोबों में सरकर्दा है और इन शोबों में तेलंगाना को मदद फराहम करने की दरख्वास्त की गई है। रियासत तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और संगारेड्डी जिले के नियालकल इलाके में सबसे कम दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। जुमा की सुबह नियालकल में कम से कम दर्जे हरारत 7.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दीगर इलाकों में भी सर्दी की शिद्दत देखी जा रही है। कोही और गमडेल्ला में 9.2 डिग्री, सतवार में 9.3 डिग्री, मेदक जिले की श्रीरामपेट में 8.9 डिग्री और सिद्दीपेट जिले के पोतरेड्डीपेट में 10.9 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है। रियासत तेलंगाना के आसिफाबाद जिले में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां एक नौजवान लड़की को शेर ने हमला करके हलाक कर दिया। जुमा की सुबह कागजनगर मंडल के नाजरल नगर में लड़की खेत में काम के लिए जा रही थी कि इस पर शेर ने हमला कर दिया। लड़की शदीद तौर पर जख्मी हो गई थी। इसके साथ ही वहां मौजूद मजदूरों ने शोर मचाया, जिसके बाद शेर वहां से चला गया। लड़की को फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने तस्दीक की कि वो पहले ही दम तोड़ चुकी है। महलूक लड़की की शनाख्त गन्नाराम गांव की रहने वाली 21 साल लक्ष्मी के तौर पर की गई है। इसके घर वालों ने नाश के साथ इंसाफ का मुतालबा करते हुए कागजनगर फॉरेस्ट ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। करीमनगर, निजामाबाद, मेदक और आदिलाबाद अजला के ग्रेजुएट MLC इंतखाबात में हिस्सा लेने के बारे में कांग्रेस के मौजूदा MLC T जीवन रेड्डी ने कहा कि वो पार्टी की आला क़यादत के फैसले के मुताबिक अमल करेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि इंतखाबात में हिस्सा लेने के मामले पर इनका कोई जाती फैसला नहीं होगा और उन्होंने अपनी राय रियासती क़यादत को दी है, जो इसे आला क़यादत तक पहुंचाएगी। जीवन रेड्डी ने यह भी कहा कि टिकट के बारे में किसी ने कोई वादा नहीं किया। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता इंतखाबात में भी वो जाती तौर पर मैदान में नहीं उतरे थे, बल्कि पार्टी के फैसले के तहत इंतखाबात में हिस्सा लिया गया था। జీవన్ ఇప్పుడు జరిగిన మీటింగ్లో సమావేశంలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్క ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులు, ఎంపీలు, జిల్లా ప్రెసిడెంట్లు అందరూ కూడా యునానిమస్గానే జీవన్ అన్న పోటీ చేయాలని చెప్పి హైకమాండ్కు రిక్వెస్ట్ చేసినాం. జీవన్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడి అయితే దానికి ఒక హై లెవెల్ కమిటీ ఒక ఏర్పాటు చేసి రేపు ఇంట్లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, ASAC వాళ్ళు కూర్చొని మరి జీవన్ రెడ్డి గారా ఇంకా ఎవరా అది కానీ కమిటీ మెంబర్స్ మాత్రం యునానిమస్గా ఇవాళ పాల్గొన్న వాళ్ళు జీవన్ రెడ్డి గారికి మళ్ళీ ఒక అవకాశం కావాలా, జీవన్ రెడ్డి గారు మీరు పోటీ చేస్తే బాగుంటుంది మా రిక్వెస్ట్ అని చెప్పినాం. బట్ ఈ రిక్వెస్ట్ అండ్ క్యాండిడేట్ గారిది ఇవన్నీ కూడా డిసైడ్ చేసేది కాంగ్రెస్ పార్టీలో మీకు తెలిసిందే, ఏదైనా హైకమాండ్ డిసిషన్ కావాలా. ఈ నిర్ణయం హైకమాండ్కు వదిలేశారు. దాని మీద ఒక కమిటీ ఇవి అవుతుంది. ఈరోజు ఈ సమావేశంలో ఏంటంటే 23 संगारेड्डी जिले में तेलंगाना RTC बस का एक बड़ा हादसा टल गया। अंदोल मंडल के कंसानपल्ली गांव के करीब RTC बस डिवाइडर से टकरा गई। हादसे के बाद बस में तकरीबन 50 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 20 मुसाफिर मामूली तौर पर जख्मी हुए। जख्मियों को जोगीपेट के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। नारायणखेड़ डिपो के पल्लेवेलगू बस नारायणखेड़ से जोगीपेट जा रही थी कि कंसानपल्ली गांव के करीब बस बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। हैदराबाद पुलिस ने मंशियात फरोशी के इल्जाम में 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से जुमला 14.5 किलोग्राम गांजा और 6 सेलफोन जब्त किए गए। जब्त की गई एशिया की जुमला मालियत 3,90,000 रुपए बताई गई है।
मुलजिमीन की शनाख्त हजारी दिनेश सिंह के तौर पर हुई है, जो अमलापुर का रहने वाला है। इसके अलावा अजीत नायक, तवत्तीन उड़ीसा के अलावा दीगर मुलजिमीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। संभल जामे मस्जिद तनाज़ा, सुप्रीम कोर्ट की निचली अदालत को मजीद समाअत न करने की हिदायत। लगा चला हुसूल अराजी का काम रोक दिया गया, हुकूमत अपने साबिक फैसले से दस्तबरदार। कांग्रेस के 1 साला दौर हुकूमत में कोई भी तबका खुश नहीं, KTR का रिमार्क। और शेर के हमले में लड़की हलाक, जिले आसिफाबाद में वाक़े से मुकामी अफराद में खौफ। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।